Good evening, everyone. Namo Namaha. Let's start with the poem Avyay Mala, the second poem, which is very important for Kanthasthi Karanam. You have to by heart it, you have to practice the shlokas. Writing practice is also important. So, as of now, we have completed only one first shloka of Avyay Mala, which was श्रोतुं कर्णौ वक्तुमास्यं सुहास्यं घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु. Yes, the shlok is about sensory organs. Now let's move ahead. We have already done with the exercise of shlok, first shloka. Today we are going to start with the next shlok. And in this next shlok, we have one sukti, that means of course हमें एक thought, एक message, एक quotation तो दिखने ही वाला है, but that quotation is related with an example, and that example is of screw pine flower, or you can call it as केतकी flower. Okay, तो ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ब्यूटीफुल केतकी फ्लावर, रेयर फ्लावर है और बहुत ही क्या कहेंगे हम, इसका फ्रेग्रेंस जो है बहुत अच्छा होता है. Very beautiful flower. So in this particular shlok, the second shlok, the poet has used the example of this केतकी flower. अभी ये जो केतकी का फ्लावर है उसका एग्जाम्पल यूज करके पोएट वांट्स टू टेल अस समथिंग थ्रू that particular example. So here on the screen we have a shlok. We'll first recite it and then we'll understand the sandhi vigrahas. गुणः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः. दिस इज अनुष्टुप मीटर, वेरी सिंपल, 2 लाइन्स का श्लोक है. फिर से एक बार रिसाइट कर रही हूँ, प्लीज पे अटेंशन. गुणः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः. So I hope students you remember that this poem is entitled as Avyay Mala. So after reciting, our first task is to identify अव्यय. And दो कि यहाँ पे पिंक कलर में ऑलरेडी अव्यय जो है दिखाया हुआ है, so you can easily observe the अव्यय, ल्यबंत अव्यय is highlighted here, that is आघ्राय. Yes, you are answering perfectly. This is आघ्राय and this is ल्यबंत अव्यय. And students, here in श्लोक ये जो आघ्राय वर्ड है देखो मिक्स है, दूसरे एक वर्ड के साथ मिक्स हो गया है. सो इन एग्जाम ऐसे काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं जब ये ल्यबंत त्वांत अव्यय जो है वो दूसरे अव्यय में मिक्स किया हुआ, दूसरे वर्ड में मिक्स किया हुआ रह सकता है. तो वहां से आपको ढूंढ के निकालना और सिर्फ करेक्ट अव्यय को आपको आंसर में लिखना है. Okay, so here we have only one अव्यय. So now let's focus on संधि विग्रह. यहाँ पे ध्यान चाहिए सबका. The combined word is दूरेपी. दूरेपी बहुत ही सिंपल सा वर्ड है. फर्स्ट वर्ड we have to write down as it is, that is दूरे, and s changes to a. S changes to a. दूरे plus a p. दूरेपी has been dissolved as दूरे plus a p. ओके चलो नेक्स्ट. तो यहाँ पे s changes to a, s changes to a, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है. लेट्स मूव अहेड. केतकी गंधमाघ्राय. Oh, here ma is highlighted. Quickly tell me which sandhi is this? Yes, students, you have spotted it correctly. The sandhi is mama mimi sandhi, and hence the answer is ketaki gandham plus aghraya. First word ends in halantama, next word starts with swar, vowel. Yes, many of you are answering correct. केतकी गंधम प्लस आग्राह्य. अगर हमें ममा मिमी संधि पता है तो नेक्स्ट संधि जो है वो भी हमारे लिए बहुत इजी है. दैट इज स्वयमायांति. क्या है संधि?
Swayam Ayanti. And we have to split it as Swayam plus Ayanti. First word ends in mo, next word starts with A. चलो क्विकली राइट डाउन ऑल द संधीज एंड संधि विग्रहस, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट किए वैसे ही नीट एंड क्लीन अपने नोटबुक में लिख लेना. You have 10 seconds more to write it down neat and clean. Aryan, the sentence which you have sent as a introduction is correct, but उसमें title भी add करना. Avyayamala is a beautiful poetry stating the importance of avyayas, and then you can say that subhashitas are not only rhythmic and melodious, but also they show us the profound meaning. Okay, you can use that sentence as your introduction. Very nice. ओके, तो आर्यन का डाउट तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, एंड आई होप आपने संधि विग्रह भी नोट डाउन कर लिए होंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड द अन्वय एंड ट्रांसलेशन ऑफ सेकंड श्लोक. सो फर्स्ट वर्ड इज दूरे. दूरे मींस फार अवे, बहुत ही दूर. वसताम, वसताम रिसाइडिंग. अपी, दो, यहाँ पे अपी का मीनिंग है दो. दो रिसाइडिंग फार अवे. अभी ये फार अवे यानी कि दूर पे कौन रह रहा है? तो सताम. सताम मतलब गुड पीपल. एंड यहाँ पे सताम जो है यहाँ पे षष्ठी विभक्ति में यूज किया गया है. तो नेक्स्ट वर्ड है गुणाहा. गुणाहा. तो यहाँ पे सताम का मीनिंग है ऑफ वर्चुअस पीपल, एंड गुणाहा मीन्स वर्चूज. तो वर्चूज ऑफ वर्चुअस पीपल, अच्छे लोगों के अच्छे गुण. दूतत्वम. दूतत्वम, दूत मीन्स मैसेंजर. परफेक्ट. कुर्वन्ति, become. कुर्वन्ति, become. So virtues become messenger of virtuous people though they residing far away. अच्छे लोग, गुड पीपल और नोबल पीपल जो होते हैं, उनके अच्छे गुण जो है वो खुद ही मैसेंजर बन जाते हैं. दैट मीन्स अभी सपोज कोई भी फेमस आपका सुपरस्टार हो या सिंगर है, कोई फेमस एक्टर है, तो सिंपली हम उनकी एक्टिंग देखते हैं फिल्म में, या फिर हम कोई सिंगर हमारा फेवरेट है तो हम उसका गाना सुनते हैं, और वो गाना जो है थ्रू एनी काइंड ऑफ अ मीडियम, सोशल मीडिया और थ्रू टीवी चैनल्स, वो गाना जो है फेमस हो जाता है. ऐसे नहीं है कि वो जो सिंगर है वो खुद सबके घर पे आके सबको मिलके पूरे देश में घूम के या पूरे वर्ल्ड में घूम के बताता रहता है हर एक को अलग अलग गाना गा के. नो, नेवर. वो एक ही गाना गाता है, एक बार अपना काम करता है, गाना फेमस हो जाता है. मतलब उसका जो अच्छा गुण है, द टैलेंट विच ही और शी हैज, वो टैलेंट हमारे पास पहुंच जाता है. हमारे पास मतलब रसिकों के पास. व्हाट इज रसिका बाय द वे? यस, ऑफ कोर्स, ऑडियंस. ऑडियंस के पास पहुंच जाता है. तो सिंपली अच्छे लोगों के जो स्किल्स होते हैं, टैलेंट्स होते हैं, गुण होते हैं, वो स्प्रेड होते हैं जस्ट एज अ मैसेंजर. वो मैसेंजर बन के हमारे पास आते हैं और उनकी पहचान करा के देते हैं. अभी देखते हैं यही सब प्रूफ करने के लिए, जैसे हमने सिंगर या एक्टर का एग्जाम्पल दिया रिसेंट टाइम का, तो वैसे ही ये जो हमारा प्राचीन काल का पोएट है उसने कौन सा एग्जाम्पल लिया है, देखते हैं. एग्जाम्पल इज इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ द श्लोका. यथा means just as. Shatpadaha. Shatpada, shat is six and padaha means legs. So having 6 legs, that is nothing but insects. So यहाँ पे particular insect है honey bee. Shatpadaha is the word actually used for insects, क्योंकि insects को 6
लेग्स होते हैं, हैविंग 6 लेग्स। बट यहाँ पे षटपदाह का मीनिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इज हनी बी, जस्ट लाइक हनी बी। केतकी गंधम, केतकी मीन्स पाइन क्रू का फ्लावर, आपको दिखा दिया है पिक्चर में, यहाँ पे भी है स्क्रीन पे। गंध मीन्स फ्रेग्रेंस ऑफ ब्यूटिफुल केतकी फ्लावर। आग्राह्य, स्टूडेंट्स, आग्राह्य मीन्स हैविंग स्मेल्ट और आफ्टर स्मेलिंग, after smelling or having smelt the beautiful fragrance of ketaki flower, honeybees, madhu panaya, madhu means honey, panaya means to drink honey, शहद पीने के लिए, शहद ग्रहण करने के लिए, to drink honey, स्वयं आयांति, स्वयं by themselves, स्वयं by themselves, आयांति came, sorry come, आयांति come। तो यहाँ पे सताम यानी कि वर्चुअस पीपल आर कंपेयर्ड विथ केतकी फ्लावर, वर्चुअस पीपल आर कंपेयर्ड विथ केतकी फ्लावर। ये जो केतकी फ्लावर है उसका स्मेल, उसका जो फ्रेग्रेंस है वही काफी है सब हनी बीज को अट्रैक्ट करने के लिए। लाइकवाइज जो वर्चुअस पीपल है उनके गुण, उनके टैलेंट, स्किल्स ही काफी है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड देखो, आग्राह्य, having smelled the beautiful fragrance of ketaki flower, honeybees come to it by themselves to drink honey. तो पूरा जो श्लोक है उसका मीनिंग कुछ इस तरह से हो जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो, virtuous become the messenger of the virtuous people, though they are residing far away, just as having smelled the fragrance of Ketaki, the bees or honeybees themselves come to it. Chalo, quickly write down the meaning, or if you have any kind of a doubt about koi bhi word, so quickly let me know for this shloka only. Teacher. Teacher. Yes, Aryan, am I audible to you? Yes, teacher. Yes, what is your doubt? Teacher, what means Ketaki, Gandha, Graya? केतकी इज नेम ऑफ द फ्लावर, जिसका पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। केतकी इज नेम ऑफ द फ्लावर। गंध मीन्स फ्रेग्रेंस एंड आग्राह्य मीन्स हैविंग स्मेल्ड द फ्रेग्रेंस ऑफ केतकी फ्लावर। हनी बीज ऑलवेज कम टू केतकी फ्लावर बाय देमसेल्व्स। एक बार अगर हनी बी ने केतकी फ्लावर का फ्रेग्रेंस देख मतलब सूंघ लिया, पता चल गया उनको, तो बार बार वो वहां पे आ जाते हैं। Okay, Aryan. So I hope the doubt is clear. Yes, Sandhya. Any doubt? Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, what is the meaning of ये स्वस्य मायांति? स्वयं आयांति, उसको ही स्प्लिट करके हमने अभी अभी सीखा ना, स्वयं प्लस आयांति। स्वयं मीन्स बाय देमसेल्फ, खुद से, एंड आयांति कम। Yes. आयांति सेम एज आगच्छन्ति। Yes, Aryan. ओके चलो, तो आई होप कि अभी क्लियर है श्लोक। लेट्स मूव अहेड। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण वाक्य
लिखत. Just tell me the answers in chat box because very simple questions. के दूतत्वं कुर्वन्ति. के दूतत्वं कुर्वन्ति. Messengers के है मतलब आंसर be बहुवचन. Yes, you are answering correctly. Many of you are answering correctly. Nice. So the answer is gunaha दूतत्वं कुर्वन्ति. Gunaha means virtues. Virtues become messenger. चलो next question students. के केतकीम आजीघ्रन्ति. के केतकीम आजीघ्रन्ति. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये जो वर्ड है आजीघ्रन्ति. ओके, इट इज सेम एज आग्राह्य. सिर्फ आग्राह्य जो था वो अव्यय था एंड आजीघ्रन्ति जो है वो वर्ब है. आजीघ्रन्ति का मीनिंग है स्मेल, टू स्मेल. सो हु स्मेल केतकी फ्लावर. Yes, your answers are absolutely correct. So गुणाहा दूतत्वं कुर्वन्ति एंड षट्पदाः केतकीम आजीघ्रन्ति. किसी को डाउट है तो फिर से बोल रही हूँ. आजीघ्रन्ति is verb and meaning is smell, सुगंध लेना. and सेम हमने देखा था पहले भी वर्ड आग्राह्य. आग्राह्य is having smell. चलो let's move ahead. We have a question here. सत्यम वा असत्यम लिखत. सत्यम वा असत्यम लिखत. पहला है सज्जनाः दूतत्वं कुर्वन्ति. सज्जनाः दूतत्वं कुर्वन्ति. सत्यम और असत्यम. ओके, आई वांट आंसर फॉर दिस ओरली ऑल्सो. मुझे उसका क्या कहेंगे हम, रीजन भी चाहिए कि वाई असत्यम और वाई सत्यम. सो हु वुड लाइक टू टेल द फर्स्ट आंसर. सज्जनाः दूतत्वं कुर्वन्ति. Just raise your hand. Yes, you are answering it correctly in chat box. Yes, Zoya. Yes, Satyam. First answer is Satyam. Because Sajjana is good people and good people. Zoya, you are not audible. Hello? Hello, you are not audible. Can you hear me? Yes, now I can hear you. Sajjana means good people and good people, they do good deeds. They have good virtues and they do good deeds. Okay, but what about Dutatvam? Dutatvam word का meaning क्या है? Dutatvam means messenger. Okay, तो और ये particular question के लिए आपका आंसर क्या है? सत्यम और असत्यम? Satyam. सत्यम. Okay, thank you so much, Zoya. तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, तो जोया का कहना है कि सज्जनाः दूतत्वं कुर्वन्ति सत्यम. सो क्विकली ऑडियंस टेल द आंसर. इज इट सत्यम? नो, द आंसर इज असत्यम. सी जोया एंड एवरीवन जिनका भी आंसर सत्यम था, सत्यम इज रॉन्ग आंसर, असत्यम इज करेक्ट आंसर. बिकॉज मीनिंग अच्छे से समझ के लो. सज्जनाः दूतत्वं कुर्वन्ति. दूतत्वम मीन्स मैसेंजर, कुर्वन्ति मीन्स बिकम. तो यहाँ पे बोलना है कि वर्चुअस पीपल और नोबल पीपल बिकम द मैसेंजर्स. नो, नॉट एट ऑल. जैसे कि मैंने बोला, सिंगर अपने घर पे आएगा क्या बताने के लिए कि मुझे सिंगिंग आता है, मेरा गाना सुनो? नो, नॉट एट ऑल. वो एक गाना रिकॉर्ड करके बस सोशल मीडिया में फैला देगा या कोई चैनल के रियलिटी शो में जाएगा और बस वो फेमस हो जाएगा. दैट मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है? उसका सॉन्ग, उसका टैलेंट, उसके वर्चूज, उसके गुण. मतलब गुणाः दूतत्वं कुर्वन्ति एंड नॉट सज्जनाः. Virtues become messenger and not good people or noble people. So answer is asatyam. चलो quickly second answer. Yes, योशिका ने आंसर दे दिया है. षट्पदाः स्वयं आयान्ति. The answer is satyam. Swayam means by themselves, ayanti means come, and षट्पदाः means, yes, you have spotted it correctly. षट्पदाः means honeybees. Honeybees come to Ketaki flower by themselves. And the last question for Satyam Asatyam.
सज्जनाः केतकी गंधम आजीघ्रन्ति। सज्जनाः केतकी गंधम आजीघ्रन्ति। जो भी ट्रू बोल रहा है एक बार फिर से सोचो। सज्जनाः, गुड पीपल, स्मेल केतकी फ्लावर। No, not at all. So the answer is asatyam for the third one. यहाँ पे चाहिए था षटपदाः केतकी गंधम आजीघ्रन्ति, तो सत्यम होता, बट यहाँ पे बोला है सज्जनाः केतकी गंधम आजीघ्रन्ति, which is wrong as per the shloka. So quickly एक recap बोल रही हूँ. For the first, the answer is asatyam. For the second, the answer is satyam, and for the third one, the answer is again asatyam. So asatyam, satyam, asatyam. Okay, quickly just tell me, am I audible to you? Yes, okay. Let's move ahead. Here on the screen, we have a picture of cow and also milk from the cow. So we're going to start with the shlok. Before that, आपको श्लोक का theme तो पता चल गया है कि this particular shlok is something related to cow and cow gives us milk. तो ये cow and milk and हमारा जो relation है उसके बारे में कुछ बताया गया हुआ है. नेचर से हमें जितनी भी चीजें एज अ गिफ्ट मिलती है उसके बारे में एक छोटा सा थॉट है ऑफ द पोएट. सो क्विकली लेट्स रिसाइट द श्लोका. भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः. once again, भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः. चलो, so after the recitation वाला part we have to focus on this संधि विग्रह वाला part. संधि यहाँ पे है बाइन वर्ड और नीचे दिया हुआ है आंसर. सो बस एक ही संधि है ये पूरे श्लोक में. संधि है लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः. स्टूडेंट्स यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व दो वर्ड्स के एंडिंग को हाईलाइट किया है एंड बोथ द वर्ड्स आर एंडिंग इन ओ ओ एंड बाय नाउ वी नो द रूल. ओ चेंजेस टू अह, श्रेयसो चेंजेस टू श्रेयसः, हर्षितो चेंजेस टू हर्षितः, एक्सेट्रा. सो लोकेभ्यो चेंजेस टू लोकेभ्यः एंड धेनवो चेंजेस टू धेनवः. बीच में हमें प्लस का साइन ऐड करना है एंड दिस इज आवर फुल आंसर. क्विकली राइट डाउन द संधि विग्रह इन योर नोटबुक. ओके, आई होप संधि विग्रह जो है वो लिख के हो गया. लोकेभ्यः प्लस धेनवः प्लस लोकमातरः. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स फोकस हियर ऑन अन्वय. धेनवः, धेनवः इज प्लूरल फॉर्म ऑफ धेनुः. धेनुः मीन्स काउ एंड धेनवः काउज. धेनवः काउज. देखो मैं ये जो सब चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, प्लीज केयरफुली लिसन इट बिकॉज आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है. सो धेनवः मीन्स काउज. शुष्काणि तृणानि, शुष्क मीन्स ड्राई. शुष्क मीन्स ड्राई. एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है शुष्काणी वर्ड यूज किया है, इट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव शुष्क बिकॉज यहाँ पे जो नाउन है तृण उसका भी प्लूरल फॉर्म यूज किया है. तृणानी मीन्स ग्रास. ओके, सो ड्राई ग्रास. धेनवः काउज, ड्राई ग्रास. भुक्त्वा, which अव्यय is this? Quickly tell me. भुक्त्वा ending in त्वा. करेक्ट, करेक्ट, इट इज त्वांत अव्यय, इसीलिए पिंक में हाईलाइट है. सो भुक्त्वा है मतलब उसका मीनिंग आफ्टर से स्टार्ट होगा. सो आफ्टर ईटिंग और आफ्टर ईटिंग. सो आफ्टर ईटिंग ड्राई ग्रास, cows
आफ्टर ईटिंग ड्राई ग्रास, इतना मीनिंग पता चल गया. लेट्स मूव अहेड. जलाशया, जल मीन्स वाटर, jalashaya means pond, jalashaya means pond, and this last at indicates us it is a panchami vibhakti. I hope you remember karakani. So panchami vibhakti का english meaning होता है from, so from pond. Toyam means water. Pitwa, ending in twa, it is a twanta way. So after drinking water from pond. Cows after eating dry grass and after ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड, ये दो चीज, ये दो अपने एक्शंस परफॉर्म करने के बाद लास्ट एक्शन काउस क्या करते हैं? लोकेभ्यः, टू ऑल द पीपल, टू ऑल ऑफ अस. लोकेभ्यः, लोक का मीनिंग यहाँ पे पीपल है, सब लोगों को. दुग्धम, वेरी सिंपल वर्ड, मिल्क. एंड यच्छन्ति, गिव. Cows give milk to all of us after eating dry grass and after drinking water from pond. अभी ये दिखने में बहुत सिंपल सेंटेंस है कि काउस हमें दूध देते हैं, ड्राई ग्रास खाते हैं एंड पॉन्ड का लेक का पानी पीते हैं. बट स्टूडेंट्स, इसमें हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है फ्रॉम काउ, ओके, दैट इज मिल्क, एंड मिल्क इज वेरी न्यूट्रिशियस. मिल्क की न्यूट्रिशियस वैल्यूज शायद आपने साइंस में पढ़ी, और जब भी हम, अभी तो कोविड-19 के सीजन में हम देख ही रहे, सबको बोल रहे हैं मिल्क पियो, एग्स खाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हेल्दी रहने के लिए मिल्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. मिल्क के न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत ज्यादा है. एंड हमें पता है कि बचपन में सबसे पहले जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको भी मिल्क ही दिया जाता है. मतलब इतना मिल्क इम्पोर्टेंट है कि बचपन से लेकर आज तक हम लोग मिल्क को इम्पोर्टेंट मानते हैं और उसका कंजम्पशन करते हैं. एंड ऐसा मिल्क जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही हाई है, वो मिल्क हमें मिलता है फ्रॉम द काउ. तो काउ के हमारे ऊपर बहुत ज्यादा उपकार है स्टूडेंट्स. एंड देखो, इसके रिटर्न में काउ हमसे कुछ भी नहीं मांगती है. कभी ऐसे देखा है कि काउ ने बिस्लरी का वाटर मांगा है? नो. कभी हमने देखा है कि काउ को कुक फूड देना पड़ता है? नहीं. उसके कभी नखरे होते हैं कि मुझे आज गुलाब जाम ही चाहिए, मुझे आज फ्राइड राइस ही चाहिए, या आज मुझे सिर्फ मिनरल वाटर चाहिए, मैं ये पॉन्ड का लेक का पानी, इधर का उधर का पानी नहीं पीऊंगी? नो. कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है. सिंपली किधर का भी कोई भी लेक का पानी वो पी लेती है. एंड ऑल्सो कोई भी ड्राई ग्रास उसको दे दो, वो खा लेती है. ये जो हम उसको एक्चुअली फीड कर रहे हैं, it is not very nutritious, but in return cow is giving us a nutritious food. Isn't it a great deal? This is called benevolence. इसको ही कहते हैं benevolence, उपकार. And students, hence poet जो है काऊ को यहाँ पे एक अच्छा सा टाइटल दे रहा है. तो क्या कहेंगे, काऊ को अप्रिशिएट करने के लिए ये टाइटल दिया हुआ है. ताहा मीन्स ऑल ऑफ काऊ, ऑल ऑफ देम आर लोक मातरः. लोक यहाँ पे है मतलब वर्ल्ड. यहाँ पे लोक का मीनिंग पीपल था, यहाँ पे लोक का मीनिंग वर्ल्ड है. मातरः इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ माता. एक मदर मीन्स माता एंड मातरः मीन्स मदर्स. खलु मीन्स indeed. So indeed all the cows are mothers of the world. सच्ची यार, सब ये जो काउज है, गाय है, वो अपनी माता है. तो ये तो हमने बहुत बार हर एक क्या कहेंगे, हम कल्चर में हम सुनते हैं कि काउ इज लाइक अ मदर और इट इज सिमिलर एज मदर. एंड हेंस संस्कृत में भी वही कल्चर है, वही थॉट यहाँ पे पोएट ने दिया है. बट उसने जो एग्जाम्पल दिया है, उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया है विद इन वेरी फ्यू वर्ड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब कुछ भी न्यूट्रिशियस हम उसको प्रोवाइड नहीं करते, बट इन रिटर्न शी इज गिविंग अस अ वेरी न्यूट्रिशियस मिल्क. सो चलो स्टूडेंट्स, इतना समझने के बाद और काऊ को अप्रिशिएट करने के बाद हमें लिखना है ट्रांसलेशन ऑफ द श्लोका. So the translation is, cows who are indeed the mothers of the world give milk to the people after eating dry grass and after drinking water from the pond. यहाँ पे सेकेंड लाइन का मीनिंग पहले लिया हुआ है एंड देन फर्स्ट लाइन का मीनिंग है. आप उल्टा भी कर सकते हो. Cows after eating dry grass and after drinking water from the pond give milk to people who are indeed mothers of the world.
ये भी करेक्ट है और यहाँ पे जैसे लिखा है वो भी करेक्ट है। तो आपको जो पसंद है वो आप लिख सकते हो। क्विकली राइट इट डाउन, राइट द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। एंड बाय द वे, आफ्टर राइटिंग द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका, हमें रेसिटेशन का एक प्रैक्टिस करना है फॉर श्लोक 2 एंड श्लोक 3, सो बी रेडी फॉर दैट। I hope everyone are writing the meaning of Shlok 3. Cows, who are indeed the mothers of the world, give milk to people after eating dry grass and after drinking water from the pond. तो एग्जाम में कंपल्सरी क्वेश्चन आने वाला है, फाइंड आउट स्वांत अव्यय और फाइंड आउट धातु साधित अव्यय फ्रॉम द श्लोक। So your answer will be bhuktva and pitva. Bhuktva and pitva. Okay students, let's move ahead. पूर्ण वाक्येन उत्तरं लिखत। धेनवः किं भुक्त्वा दुग्धं यच्छन्ति। पहला क्वेश्चन है धेनवः किं भुक्त्वा दुग्धं यच्छन्ति। भुक्त्वा का मीनिंग बाय नाउ यू नो, भुक्त्वा मीन्स आफ्टर ईटिंग। आफ्टर ईटिंग व्हाट cows give milk to us. Okay, you are answering in chat box and that is a perfect answer. शुष्काणि तृणानि, हमें दोनों भी वर्ड्स लिखने स्टूडेंट्स, नॉट ओनली ग्रास, इट इज ड्राई ग्रास। So after eating dry grass, cows give milk to us. So धेनवः शुष्काणि तृणानि भुक्त्वा दुग्धं यच्छन्ति। चलो, second question students, let me know the answer in chat box. धेनवः जलाशयात् किं पिबन्ति। पिबन्ति means drink. Very good. So क्या पीते हैं cows? Mineral water, बिस्लेरी water, शरबत। Oh yes, you have spotted it correctly. The word is toyam. Toyam means water. So dhenavah jalashayat toyam pibanti. And students, very simple last question for you. लोकमातरः काहा। काहा indicates कि हमें feminine और बहुवचन वाला word लिखना है। तो पूर्वा ने तो करेक्ट आंसर दे दिया है। I want many more answers from you. लोकमातरः काहा। रिद्धि दुग्धाः। Dugdha is your mother. Milk is your mother. Just think and then answer. Yes, Abhishek, correct answer. Soham, थोड़ा spelling mistake है. Jay, correct answer. Okay, and अभी फटाफट answers आ रहे हैं. So yes, all the answers are correct. तो आपको स्पेलिंग यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। लोकमातरः धेनवः। धेनवः is a plural form of word धेनुः। धेनवः means cows, धेनुः means cow, a single cow. तो देखो फर्स्ट आंसर है शुष्काणि तृणानि भुक्त्वा, धेनवः दुग्धं यच्छन्ति, धेनवः जलाशयात् तोयं पिबन्ति एंड लोकमातरः धेनवः। उसके बाद फुल स्टॉप देना है। Okay, then you have next question based on same श्लोक, that is कर्ता कर्म क्रियापदम च लिखत। एक छोटा सा सेंटेंस दिया हुआ है and you have to just find out which is karta, which is karma and which is kriyapad. Karta means subject, karma is object and kriyapad is action verb. Okay, who would like to tell me the answer orally? Yes, Yoshita from Chembur. Hello. Yes, Yoshita. Miss, Dudham is karma. Okay.
Yachanti is Kriyapad Very good. and Dhenavah is Karta. Very nice. All the answers are correct, Yoshita. Thank you, ma'am. So बहुत ही सिंपल सा है स्टूडेंट्स. करता इज देना वह, बिकॉज वही एक्शन कर रही है. डूअर ऑफ द एक्शन है देना वह काउस. काउस क्या दे रही है हमें, क्या, व्हाट क्वेश्चन जब पूछे थे तो हमें आंसर मिलता है दुग्धम. सो कर्म इज दुग्धम एंड क्रियापदम एक्शन, देने की एक्शन है, गिविंग है, तो इसीलिए यच्छन्ति इज क्रियापदम. सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है इनफैक्ट, एंड आई होप आपको इजीली ये सॉल्व करने के लिए आ गया है. Let's move ahead and the last question for the shlok, that is ekavachane परिवर्तयत. लोकमातरः धेनवः शुष्कानि तृणानि खादन्ति. इसको हमें एक वचन में कन्वर्ट करना है. तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है दैट इज बहुवचन, प्लूरल फॉर्म, हमें उसका सिंगुलर फॉर्म बनाना है. तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, लोकमातरः जो दिया हुआ है वर्ड, ये है प्लूरल, बिकॉज धेनवः है इसलिए लोकमातरः. तो जैसे कि मैंने बोला मातरः का सिंगुलर फॉर्म है माता, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लोकमाता. धेनवः का सिंगुलर फॉर्म धेनुः. शुष्कानि तृणानि विल रिमेन एज इट इज, बिकॉज एक काऊ हो या बहुत सारी काउज हो, ग्रास तो बहुत खाने वाली है, कोई एक hay stick नहीं खाएगा. of course we need more hay sticks, more grass, and इसीलिए वो हम लोग as it is रखेंगे शुष्कानि तृणानि, and खादन्ति will become खादति. so लोकमाता धेनुः शुष्कानि तृणानि खादति. Yes, Soham, we are using here ti tah anti wala table, so anti changes to ti. Quickly write down the answer. Lokamata धेनुः शुष्कानि तृणानि खादन्ति. And I hope आप ये जो वर्ड है धेनवः धेनुः आपको नया लग रहा है, आपने स्पॉट किया रहेगा कि ये कौन सा वर्ड है उकारांत. तो ये भी टेबल हम लोग सीखने वाले हैं जल्दी, इनफैक्ट कल के लेक्चर में. तो लोकमाता धेनवः शुष्कानि तृणानि खादन्ति, लोकमाता धेनुः शुष्कानि तृणानि खादति इज द आंसर. बहुवचन एक वचन. डोंट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, एक सेंटेंस है, क्विकली राइट इट डाउन. लास्ट 2 seconds. Okay. Now, who would like to recite shlok number 2? Who would like to recite shlok 2? ये वाला श्लोक, फाइन क्रू वाला. देख के रिसाइट करना है. यस, पूर्वा फ्रॉम डी नगर. हेलो मैम. हेलो पूर्वा, रिसाइट दिस श्लोक. गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गन्धं माघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः. Wow, so sweet of you. Nice voice. Thank you so much, Purva. Thank you, ma'am. Okay. तो पूर्वा जैसे स्वीट स्वीट वॉइस में और किसको श्लोक रिसाइट करना है, क्विकली रेज योर हैंड. यस, संध्या फ्रॉम डी नगर. Hello, ma'am. यस संध्या. गुणाः कुर्वन्ति दूत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गन्धमाग्राय स्वयमायान्ति षट्पदा. Wow, very nice. Again, a beautiful and melodious voice of Sandhya. Thank you so much, Sandhya. Welcome, ma'am. Next, let's give chance to boys. So, Abhishek from Ghatkopar. Hello, ma'am. Yes, Abhishek. गुणः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः. Wow, very nice. Very nice, Sure. Abhishek. Perfect pronunciations. Thank you, Abhishek. Okay, let's give chance to Deep. Deep from Ghatkopar. Good evening, ma'am. Yes, Deep.
गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः. Very nice, Deep. Once again, perfect pronunciations. Thank you, Keep it ma'am. up. Okay, students, now it's time to recite next shloka, third shlok. Again, 2 lines का same tune में, same धुन में हमें बोलना है, recite करना है. So, who all are ready? Not same hands once again. Yes, Riddhi from Ghatkopar. Hello. Yes, Riddhi. भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः. Very nice. Perfect tune. एक word सिर्फ फिर से बोलना मेरे साथ, भुक्त्वा. भुक्त्वा. Very good. Thank you so much, Riddhi. Welcome. Okay. So now last turn. Let's give chance to Ayush from Ghatkopar. Ayush. Ankita from DN Nagar. Yes, Ankita. Ma'am. Yes, Ankita, you are audible. भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः. Very good, Ankita. Again, nice pronunciations. Thank you. Thank you, ma'am. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा, बहुत सिंपल है ये 2 लाइंस के श्लोक रिसाइट करना, सेम ही ट्यून होती है. सो प्रैक्टिस इट एट होम एंड आई होप ये रेसिटेशन वाला पार्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. सो आपके आंसर्स हमने यहाँ पे सब डिस्कस कर लिए फॉर थर्ड श्लोका. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक व्हिच इज द फोर्थ श्लोक. फर्स्ट विल रिसाइट द श्लोक. यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहं कथं द्वितीया स्यात् द्वितीयास्यामहं कथम्. Once again I am reciting it. यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहं कथं द्वितीया स्यात् द्वितीयास्यामहं कथम्. So students, here we have first संधि highlighted, श्यामहम. बहुत सिंपल है यार, बहुत बार अभी हमने ये रिपीट कर लिया, which is ममा मीमी संधि. फर्स्ट वर्ड ends in हलंतम, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ. आई थिंक ये सेकंड पोएम होने के बाद ममा मीमी संधि और विसर्ग संधि आपको इजीली याद रह जाएगा, बिकॉज अभी बहुत बार उसका रिपीटेशन हो गया है. सो हमारा आंसर होगा श्याम प्लस अहम. श्याम प्लस अहम. ओके, सो हियर वी हैव ओनली वन संधि. बिफोर स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका, इसके बैकग्राउंड में एक स्टोरी है एंड वो स्टोरी को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो क्विकली अभी यस रेडी हो जाओ टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड और इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस श्लोक. वेदवती नाम की एक वेल वर्स्ड लेडी थी. वेदवती, अ लेडी who was well versed with grammar, with Sanskrit grammar, and wanted to test her groom. Okay, वेदवती जो है बहुत फेमस ऐसी ग्रामर की एक्सपर्ट थी, स्कॉलर थी, वेल वर्स थी. एंड अभी उसके ग्रूम की, यानी कि उसकी शादी होने वाली है, तो उसको हस्बैंड अपना चॉइस करना है, ग्रूम चॉइस करना है. एंड ग्रूम चॉइस करने के लिए उसने एक टेस्ट कंडक्ट की थी. She wanted to test the groom before marrying. In order to test the knowledge of that groom, जो उसके यहाँ पे आए थे सब ग्रूम, बहुत सारे ग्रूम्स जो है वहां पे लाइन में लग गए थे, तो उसमें से एक ग्रूम का, एक जो वहां पे लड़का आया था, उसका नाम था गौरांग. देखो, 2 कैरेक्टर्स के नाम मैंने अभी तक बोले स्टूडेंट्स. वन इज वेदवती, who was a very well versed grammar scholar lady, and she is testing grooms for before marrying. एंड उसमें से ग्रूम्स के लिस्ट में से एक था गौरांग. वेदवती एंड गौरांग.
अभी ये जो गौरांग है ये उसको मिलने के लिए आया एंड वेदवती आस्क्ड हिम सम क्वेश्चंस एंड वो क्वेश्चंस ही हमारे श्लोक में दिए हुए हैं। तो देखो ये जो श्लोक हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस श्लोक इज एक्चुअली अ क्वेश्चन आंसर सीरीज। इतने कम श्लोक में ही पोएट ने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज एक्सप्लेन कर दी है। क्वेश्चंस are asked by Vedavati and answers are given by Gauranga. Gauranga was a groom. Okay? तो अभी यहाँ पे जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं पिंक में हाईलाइट किए हुए, विहस्य एंड विहाय आर टू ल्यबंत अव्ययस। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले ही आंसर दे दिया जैसे ही उन्होंने श्लोक देखा। तो विहस्य एंड विहाय आर ल्यबंत अव्ययस। स्टूडेंट्स अभी ये विहस्य एंड विहाय ल्यबंत अव्यय जो है यहाँ पे यूज किए एंड यूजिंग दीज अव्ययस यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस वेदवती ने गौरांग के लिए लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स ये जो गौरांग है बचपन से, अभी इसका बैकग्राउंड जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरांग जो है बचपन से उसकी पढ़ाई के साथ कुछ बनती नहीं थी बॉस। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक बस उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसको बस प्रमोट किया जा रहा है, पास नहीं हो रहा है, बस प्रमोट कर रहे हैं। बिकॉज टीचर्स भी बहुत बोर हो गए, एक ही जो स्टैंडर्ड है उसमें 2-2 3-3 साल रहता था, तो फिर सब टीचर्स जो है उसको प्रमोट कर देते थे। ऐसे करते करते मतलब देखो एक 5-6 साल एज के अपने ऐसे वेस्ट करते करते वो 10th स्टैंडर्ड तक कैसे तो पहुंच गया था। बट ऐसा एंशियंट टाइम में संस्कृत ग्रामर वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बाकी लैंग्वेजेस जो है वो डेवलप नहीं हुई थी एंड इसीलिए गौरांग एंड वेदवती के टाइम पे संस्कृत ग्रामर अच्छे से आना बहुत इंपॉर्टेंट था। बेचारे गौरांग ने इतने साल से पढ़ाई कर रहा था बट उसको सिर्फ एक ही टेबल आता था एंड दैट इज अ टेबल ऑफ देव। स्टूडेंट्स आई होप आप तो 9th स्टैंडर्ड में हो, आपको देव टेबल अच्छे से आता है कि नहीं आता है? यस, बट ऐसा है क्या 8th and 9th में आपने सिर्फ देव का ही टेबल सीखा है? नो, नॉट एट ऑल। आपको बहुत सारे वर्सेस पता है, आपको लास्ट ईयर के कुछ लेसन्स पता है, आपको एटलीस्ट मम परिचय सेल्फ इंट्रोडक्शन संस्कृत में आता है। यस, सोहम इज सेइंग कि मैम माला और वन का टेबल भी आता है। वेरी गुड, मेनी ऑफ यू आर टेलिंग मी न्यू नेम्स। नदी का टेबल आता है, वारी का टेबल आता है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो ऐसे देखो आप लोग बस 1 साल संस्कृत सीखे, आपको एटलीस्ट 2-3 टेबल्स, एक सेल्फ इंट्रोडक्शन, 1-2 लेसन्स, कुछ नए वर्ड्स, ये सब, या फ्रूट्स के नाम हो, एनिमल्स के नाम हो, इतना आता है। बट ये गौरांग कितना डम था यार, इतने साल में उसने सिर्फ क्या लर्न किया? एक देव का टेबल। ओके, अभी लर्न तो कर लिया, एकदम रट्टा मार लिया। देखते हैं विद द हेल्प ऑफ देव का टेबल वो अपना ये टेस्ट कैसे सॉल्व करता है। So now quickly understand the meaning of this particular श्लोक। I hope आपको बैकग्राउंड पता है। अभी 2 कैरेक्टर्स है, वेदवती एंड गौरांग। उनमें हो रहा है इंटरव्यू। वेदवती इज आस्किंग क्वेश्चन, गौरांग इज गिविंग आंसर एंड देखते हैं वो क्वेश्चन आंसर क्या है। एंड उसका बैकग्राउंड याद रखना, वेदवती वेल वर्स्ड है एंड गौरांग डम्ब है। उसको सिर्फ कौन सा टेबल आता है बच्चों? देव का टेबल आता है। ओके, तो अभी यहाँ पे पहला वर्ड है यस्य। यस्य का मीनिंग है यस, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यस्य, फॉर हुम। यस्य इज षष्ठी विभक्ति, सो फॉर हुम और ऑफ हुम। कृते मीन्स यहाँ पे फॉर, तो 2 ये षष्ठी विभक्ति हम मीनिंग लेने वाले हैं। फॉर हुम, जिसके लिए। विहस्य, विहस्य, ये वर्ड विहस्य इज अ ल्यबंतव्य। इति, दिस वर्ड इज अ षष्ठी विभक्ति, उसके लिए विहस्य इज अ षष्ठी विभक्ति एंड विहाय इज अ चतुर्थी विभक्ति। द वर्ड विहाय इज इन चतुर्थी विभक्ति। तो सिंपली ये वर्ड से हमें पता चलता है कि पहला क्वेश्चन वेदवती ने उसको पूछा, टेल मी द ग्रामेटिकल टर्म ऑफ विहस्य एंड विहाय। वेदवती ने गौरांग से पूछा, टेल मी द ग्रामेटिकल टर्म फॉर विहस्य एंड विहाय। अभी अगर यही क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी, यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स एंड आई नो आप आंसर दोगे, बोथ आर ल्यबंतव्यस, राइट स्टूडेंट्स? यस, बट ये गौरांग जो है उसने आंसर क्या दिया? देखो, विहस्य इज इन षष्ठी विभक्ति लाइक देवस्य एंड विहाय इज इन चतुर्थी विभक्ति लाइक देवाय। कितना डम्ब है।
ये दोनों भी नाउन्स नहीं है, ये अव्यय है, ये लेबंत अव्यय है, बट बेचारे ने क्या बोल दिया, बोथ आर नाउन्स. एंड सेम लाइक देवस्य एंड देवाय. वेदवती को मन में ही हंसी आ रही थी. वो बोली चलो ठीक है, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अभी थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछती हूँ. एंड इसीलिए वेदवती ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, टेल मी द मीनिंग ऑफ अहम एंड कथम. अहम एंड कथम का मीनिंग बताओ, या फिर ये जो अहम एंड कथम है कैसे यूज करने हैं वो मुझे एक सेंटेंस बता दो. ऐसा क्वेश्चन वेदवती ने पूछा. तो अपने जो द ग्रेट गौरांग है उन्होंने आंसर दिया, अहम एंड कथम. श मीन्स एंड, ये जो दो वर्ड्स है इति, दीज वर्ड्स आर इन द्वितीया विभक्ति. कौन से विभक्ति में है, द्वितीया विभक्ति. तो उसने फिर से देव के टेबल के साथ इनको कनेक्ट किया. अहम एंड कथम साउंड्स लाइक देवम. अहम एंड कथम साउंड्स लाइक देवम. फिर से उसको बिग 0 मिल गया इंटरव्यू में. पहला क्वेश्चन भी गलत आंसर दिया, सेकंड क्वेश्चन भी गलत आंसर दिया. स्टूडेंट्स, नाउ आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू ऑल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अहम और कैसे यूज करोगे? क्विकली टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अहम एंड कैसे यूज करोगे. चलो चेक करते हैं, आप में से कोई गौरांग है क्या कि सब वेदवती है? लेट मी नो योर आंसर. अंकिता इज सेइंग अहम इज प्रोनाउन. वेरी गुड. अंकिता को हाफ मार्क तो मिल जाएगा. अंकिता क्विकली टेल मी द मीनिंग ऑफ अहम. सोहम इज ऑल्सो टेइंग अहम प्रोनाउन है. वाव, रोशन ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, अहम मीन्स आई. सो 8th स्टैंडर्ड में आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, अहम बालकः, अहम बालिका, अहम विराजः, अहम नीरजः, ऐसे आंसर्स हमने दिए थे. तो अहम मीन्स आई एम, मैं कौन हूँ, ये बताने के लिए हम अहम यूज करते हैं. फैंटास्टिक. चलो लेट मी नो द आंसर फॉर कथम. कथम क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, क्रियापद है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कथम? Okay, someone is saying Katham is story. No, that is Katha. We want answer for Katham. Okay, someone is saying Katham means who. नहीं, आप थोड़ा थोड़ा आंसर के पास जा रहे हो. Katham means not who. Katham is to ask something. No, और थोड़ा. Yes, Ankita spotted it correctly. Katham means how. Katham means how. So अगर हमें कोई भी चीज का डिस्क्रिप्शन पूछना है तो हम यूज करते हैं कथम. कथम मीन्स हाउ. तो कथम एक अगेन प्रोनाउन है. किम सर्वनाम जैसे हम यूज करते हैं वैसे ही कथम जो है प्रोनाउन या फिर अव्यय है. एंड कथम का मीनिंग है हाउ. तो एक्चुअली आंसर एक्सपेक्टेड था कि कथम एंड अहम बोथ आर. अहम इज प्रोनाउन मीनिंग आई एंड कथम इज अव्यय मीनिंग हाउ. बट बेचारे ने आंसर क्या दे दिया, बोथ आर लुक लाइक देव एंड दे आर इन द्वितीया विभक्ति. ये दोनों भी आंसर सुनने के बाद वेदवती बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई. एंड उसने वो जो गौरांग है उसको टाटा बाय बाय बोला. टाटा बाय बाय बोलते वक्त, उसको निकालते वक्त अपने महल से, उसने बहुत ही टॉन्टिंगली, सरकास्टिकली उसको जवाब दिया. उसके आंसर्स कैसे गलत है वो बताया. तो वो जवाब लास्ट के 3 वर्ड्स में है, द्वितीया श्याम अहम कथम. यहाँ पे 4 वर्ड्स है टोटल, द्वितीया श्याम अहम कथम. स्टूडेंट्स अभी इसका मीनिंग देखते हैं. द्वितीया श्याम अहम कथम, यहाँ पे द्वितीया विभक्ति का मीनिंग है वाइफ. यहाँ पे जो एक वर्ड था द्वितीया, उसका मीनिंग है द विभक्ति द्वितीया. द्वितीया विभक्ति द्वितीया वर्ड का और एक मीनिंग होता है वाइफ. श्याम का मीनिंग यहाँ पे है बिकम. श्याम का मीनिंग है यहाँ पे बिकम. अहम का मीनिंग अभी आपको पता है आई. एंड कथम का मीनिंग है हाउ. तो देखो, उसको जो वर्ड्स नहीं आ रहे थे वही वर्ड्स का मतलब उसने बताया, एज वेल एज उसको टॉन्ट भी किया. तो स्टूडेंट्स, टॉन्ट क्या था, हाउ कैन आई बिकम द वाइफ ऑफ सच. मन में बोला डम पर्सन, तो इसलिए डम के लिए यहाँ पे वर्ड नहीं है, बट सिर्फ उसने बोला हाउ कैन आई बी द वाइफ ऑफ सच पर्सन. ऐसे इंसान की वाइफ में कैसे बन सकती हूँ जिसको सिंपल ग्रामेटिकल टर्म्स भी नहीं पता. विहस्य विहाय
बोथ आर ल्यबंत अव्ययस एंड अहम कथम जो है उस अहम का मीनिंग आई है, कथम का मीनिंग हाउ है। इतने सिंपल संस्कृत के टर्म्स जिसको नहीं पता वो मुझसे शादी कैसे कर सकता है? मैं तो भाई पीएचडी एमए और बहुत सारी डिग्रीज ली हूँ मैं संस्कृत में, तो वो मेरे से शादी कैसे करेगा? ऐसा टॉन्ट सरकाज़म जो है वेदवती ने ग्रूम गौरांग को दिखाया। सो दिस इज अ श्लोक taken from the conversation of Vedavati and Gauranga. I hope the shlok is clear. Quickly write down the meaning of the shlok. मीनिंग बहुत छोटा सा है बट उसका बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन आई बिकम द वाइफ ऑफ अ पर्सन फॉर whom the word vihasya is षष्ठी विभक्ति, vihaya is चतुर्थी विभक्ति and aham and katham are द्वितीया विभक्ति? क्वेश्चन मार्क। सो किसी को डाउट है स्टोरी में? Okay, very good, no doubt. So quickly write down the translation. You have 20 seconds to write it down. Okay students, so I hope meaning लिख के हो गया है. We have to move ahead. We have still one shlok in Avyay Mala which we have to complete today itself because your exams are coming. Okay, Sandhya is asking, ma'am, yasya is also lyabantavya. No, yasya is pronoun. Whom? For whom? यस्य इज प्रोनाउन. यस्य, तस्य, कस्य, एतस्य सब प्रोनाउंस होते हैं. स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के प्रोनाउन का लिस्ट प्लीज रिवाइज करो. लास्ट ईयर का कोई भी ग्रामर हमें छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है. ओके चलो लेट्स मूव अहेड. लास्ट श्लोक को अंडरस्टैंड करते हैं. ओह, प्लीज ऑब्जर्व द स्क्रीन. क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? अचानक हम अव्यय माला से कोई घोस्ट के मूवी में आ गए हैं. ओके, मेनी ऑफ यू आर सेइंग घोस्ट दिख रहा है, भूत दिख रहा है, एलियन दिख रहा है. ओके, बट कैसे लग रहा है ये तीनों भी जो पिक्चर्स यहाँ पे है? बहुत मस्त है, पसंद आए? रूम में आपके फ्रेम करके लगाओगे? अजीब है. वाओ, दैट इज द परफेक्ट वर्ड. अजीब है, वियर्ड है. यस, नो, रूम में बिल्कुल नहीं लगाएंगे. बहुत डरावने हैं, वियर्ड. यस, करेक्ट. तो सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पिक्चर्स है हमें एक चीज इसमें ऑब्जर्व करनी है. ये हमें वियर्ड लग रहा है, ये भी वियर्ड लग रहा है, ये भी वियर्ड लग रहा है. क्यों वियर्ड लग रहा है? क्योंकि देखो ये दिख तो रहा है इंसान जैसा, बट ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर. बट स्टूडेंट्स यहाँ पे उसका जो फेस है वो बहुत ही वियर्ड है, स्कैरी है. वियर्ड क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट रिजेंबल द फेस ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग के फेस से रिजेंबल नहीं कर रहा है, इसीलिए वो अलग दिख रहा है. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो है कुछ हेयर जैसे है, एंड ये जो हेयर है वो फेस पे दिखाए गए. दो कि हमें पता है कि हेयर कहाँ होने चाहिए. यस, हेड पे होने चाहिए, बट हेयर जो है अपनी जगह बदल देते हैं तो वो वियर्ड लगने लगते हैं. यहाँ पे भी देखो ये जो है दोनों भी इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, बट अचानक उनको ये जो बीक आ गई है जो कि बीक नहीं रहती है इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स को, तो ये जब बीक ह्यूमन बीइंग्स को दिखा देते हैं तो ये कुछ वियर्ड हो जाता है. तो ये वियर्ड हमें इसीलिए लग रहा है बिकॉज हमारे माइंड में ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते हैं, मैन कैसे दिखता है, वुमन कैसे दिखती है, छोटी बच्ची कैसे दिखती है, इसके कुछ पिक्चर्स रेडी है क्योंकि हम लोग ये बचपन से देखते आ रहे हैं, हमने ये सब अनुभव किया हुआ है. एंड जब भी उसके अपोजिट या अलग, वियर्ड, विचित्र, अजीब आपके लैंग्वेज में कोई पिक्चर्स हमें दिखते तो हमें लगता है वो भूत है. Okay, and we don't like such kinds of a picture. So
same thing is there in this next श्लोक. तो ये पिक्चर्स दिखाए आपको इसीलिए ताकि आपको याद रहे कि लास्ट श्लोक का थीम क्या है, द वियर्डनेस. ओके, एंड देखते हैं अभी ये वियर्ड थिंग्स और प्लेसिंग चेंज होने की वजह से क्या क्या होता है. सो लेट्स रिसाइट द श्लोक फॉर स्टूडेंट्स. स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दंता केशा नखा नराः इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत्. Once again, स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दन्तः केशा नखा नराः इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत्. Okay, so after reciting the shlok, we have to focus on sandhi vigrahas. First sandhi and second sandhi is based on same rule. So sthana bhrashtan, two words are separate. So by now you know what is missing. Yes, of course, the missing is visarga. Perfect. Sthana bhrashtaha plus no. तो हमने क्या किया, दोनों वर्ड्स को एज इट इज लिखा, बीच में एक प्लस का साइन दिया एंड फर्स्ट वर्ड शुड एंड इन विसर्ग. स्थान भ्रष्टा विल बिकम स्थान भ्रष्टा. सेम फॉर द नेक्स्ट वर्ड केशा नखा नराहा. सब जो है हमें प्लूरल में बनाना है एंड सब वर्ड्स अलग अलग है संधि में. सो समथिंग इज मिसिंग एंड दैट इज विसर्ग. So keshaha plus nakhaha plus naraha. Quickly write down sandhi vigrahas and then we'll move ahead and understand the meaning. Okay, done. Let's move ahead. Meaning understand करना है. स्थान भ्रष्टाहा. स्थान means place. भ्रष्ट means displaced. Displaced. स्थान भ्रष्टाहा displaced. अपनी जगह पे नहीं है, अपनी जगह से मिस है या फिर अलग हो गए, किधर तो और ही रख दिया. क्या क्या डिस्प्लेस हो गया है. दंताहा. दंताहा मीन्स टीथ. केशाहा मीन्स हेयर. अपने बाल और अपनी टीथ जो है, दांत जो है, वो अगर अलग अलग जगह पे हो गए, डिस्प्लेस हो गए. मतलब अगर सोचो जो दांत जो है हमारे हाथ पे आ गए, इंस्टेड ऑफ नेल्स हमें दांत दिखने लगे अपने हाथ पे, कितना फनी लगेगा और कभी कभी ये डरावना भी लगेगा. केशाहा हेयर. अचानक से ये हेयर जो है बाल के ऊपर से उठ के हमारे पाम में आ गए, हाथ में आ गए. बाप रे, भालू जैसा फील होगा या फिर कुछ डरावना घोस्ट है ऐसा फील होगा. देन नेक्स्ट है नकाहा. नखा मीन्स नेल्स. तो हमें पता है कि नेल्स जो है हम लोग नेल पेंट्स लगाते हैं, गर्ल्स स्पेशली. सो नेल्स आर हियर, दे आर पार्ट ऑफ हैंड्स. अगर ये जो नेल्स है वो हमारे चीक्स पे आ गए, सोचो हम कैसे दिखेंगे. बस इमेजिन करना, इफ योर नेल्स आर हियर ऑन चीक्स, oh my god, that's very scary. Then next है नराहा. नराहा means man. Also ये जो मतलब ये तो हो गए बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स इधर उधर डिस्प्लेस हो गए तो बहुत फनी या फिर वियर्ड या फिर स्कैरी लगेगा. पर सोचो इंसान डिस्प्लेस हो गया. इंसान यानी कि अगर डॉक्टर जो है वो चला गया स्पेसशिप चलाने, या फिर टीचर जो है वो अचानक बन गया सर्जन. एक्चुअली टीचिंग का सब कुछ उसने डिग्री लिया है, बट अचानक वो गया सर्जरी करने. जो इंसान बचने वाला था 90% थे चांसेस, उसके चांसेस सीधा 0% हो जाएंगे बचने के. ओके, तो इंसान भी अगर डिस्प्लेस हो जाए, अपना खुद का काम छोड़ के वो दूसरा कोई काम करने के लिए चला जाए, तो भी बहुत डेंजर है बॉस. ऐसा यहाँ पे पोएट बोल रहा है. च मीन्स एंड, न शोभनते मीन्स डू नॉट लुक ब्यूटिफुल. न शोभनते डू नॉट अपीयर नाइस और डू नॉट लुक ब्यूटिफुल. जब भी ये सब चीजें जो है डिस्प्लेस हो जाती है तो दे डोंट अपीयर नाइस टू अस, वो हमें कुछ ठीक नहीं लगती है. इति विज्ञाय. इति मीन्स दिस. आफ्टर नोइंग दिस थॉट, विज्ञाय आफ्टर नोइंग, ये जानकर. आफ्टर नोइंग, न्या मीन्स टू नो एंड विज्ञाय आफ्टर नोइंग. मतिमान. मतिमान मीन्स yes, intellectually strong people, intelligent people, great people. Matiman. Narah means man, intelligent man. Swasthanam.
Swa means own, sthana means place, खुद का place, own place. Matiman narah, intelligent one, intelligent man. Na parityajet, na means never, parityajet means give up. Never give up his own place. After knowing this thought, intelligent man never give up his own place. जब आपको ये पता चल जाता है कि displaced teeth, hair, nails as well as people don't look beautiful or don't appear nice to us, they look very weird. At that time, after knowing this thought, we never give up our own place. मतलब हम अपना काम, अपनी place कभी भी नहीं छोड़ते. ये जो पर्टिकुलर श्लोक है स्टूडेंट्स आपको फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप अपना पैशन और अपना करियर चॉइस करोगे तो जो आपको पसंद है, जिसमें आपका टैलेंट है, जिसमें आपकी कैपेसिटी है और आप इजीली वो चीज कर सकते हो, एंजॉय भी करते हो और आप दूसरों से बेहतरीन करते हो, वही चीज को आपको फॉलो करना चाहिए. न कि सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड कॉमर्स को जा रहा है तो मैं भी कॉमर्स को जाऊंगा, दो मुझे मैथ्स कुछ भी नहीं आता, ओके या फिर दो मुझे कुछ ये बैंकिंग या फिर अकाउंटेंसी कुछ पता तो है नहीं, पसंद भी है नहीं, बस मेरा बेस्ट फ्रेंड जा रहा है ना तो मैं भी जा रही हूँ और जा रहा हूँ. ये बहुत ही रॉन्ग एटीट्यूड है. इफ यू लाइक आर्ट्स गो फॉर आर्ट्स, इफ यू लाइक साइंस गो फॉर साइंस. और मेनी स्ट्रीम्स, आपको स्पेसशिप में एंटर करना है, आपको पायलट बनना है एंड ब्ला ब्ला मेनी थिंग्स. बट जो भी आपका पैशन है, आप पसंद करते हो, आपका आइडल जो भी है उसको फॉलो करना. ओके तो बेसिकली ये श्लोक आपको मोटिवेट करने के लिए दिया है कि फॉलो योर पैशन. चलो लेट्स मूव अहेड and here we have the translation of shlok. Quickly write it down and then we'll stop. So knowing that teeth, hair, nails and people that are not in the right place or which are displaced don't look good or don't appear nice to us, likewise a wise person would not give up his place. Write down the meaning of this shloka. And students, your homework will be, you have to solve questions of श्लोक नंबर 4 एंड श्लोक नंबर 5. श्लोक 3 के तो हमने डिस्कस कर लिए, भुक्त्वा तृणानि के. श्लोक 4 एंड 5 के ऑल द टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपको नोटबुक में रिटर्न में सॉल्व करने हैं. विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम मतलब टुमारो. टेन सेकेंड मोर. Done writing, everyone? Shall we stop here? Okay. Okay, still some of you are writing. Okay, we'll wait. Till then, if you have any kind of a doubt, ask me. Yes, Deep, tomorrow also you have lecture. Okay, students, so we'll stop here. Thank you so much. Punar milamah. Yes, bye-bye everyone. Take care.